In uniform circular motion, so far what we have seen: angular displacement, frequency, then time period and relation between both, angular velocity, average angular velocity and angular velocity, both we have seen, its direction we have seen, and some questions were based on this. Do you have any difficulty in this? So far, whatever topic we have done in uniform circular motion, is there any problem? What is the answer of this No, sir. question? बोलिए फिर इसका आंसर क्या आएगा? Ratio of angular speed of rotation of Earth on its axis to the angular speed of our end of the clock. तो ये वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं, ओमेगा वाला, ये वाला फार्मूला. What is the answer coming? That is T2 by T1. Then what is T2? T2 is the angular speed of that hour end of the clock. उसका time period कितना होगा hour end का? How much time it takes to complete one cycle? 3600. You can tell it in hours. Hours में, because दोनों को hours में लिखो, then it will be easy. Will get cancelled. How many hours? 24. How much time Earth takes? Sir, 24. 365 into 24. 24 hours. And what about this hour end of the clock? How much time it takes to go around one cycle? कितना time लेता है? How much this takes? Quick answer. Sir, Not around the seen, eh? sun. See, what is the question? I'm asking you that question. You have not done the homework and now getting confused. क्या है ये question? Nobody knows how much time, what is the time period of rotation of our end of the clock? Wall clock देखा आपने? Yes, sir, जिसमें 24 hours for one day, right? So one rotation is equals to 24 hours. one day के लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ. Time period of rotation of our end of the clock. We are talking about time period, not for one day. Nobody knows. Suppose our end is at 12 o'clock now, 6 o'clock. Again, it will be at 6 o'clock after how many hours? 12. 12. Then its cycle is completed in 12 hours. So 1/2. Clear? Yes, sir. It is 1/2. You don't have to convert it into minutes and seconds and all. Let it be in hours, it will get cancelled. 1/2 is the right answer. All right. Yes, sir. Anybody has any difficulty in this? Okay. Let's see the next one. ये इसको कैसे करेंगे? It is Differentiate करेंगे time के. हाँ. ये angular velocity at t is equal to 2 seconds. Means ओमेगा निकलना है डिफरेंशिएशन से, d theta by dt निकलना है. तो ओमेगा is rate of change of angular displacement. डिफरेंशिएट करो, t स्क्वायर का कितना होगा? 2t 5. और t का 1. तो ये रिलेशन आ गया ओमेगा का. Therefore ओमेगा is 2t plus 1 at t is equal to 2 seconds. वैल्यू पुट कर दीजिए फंक्शन में. t की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने. ये 2 यहाँ पुट कर दो. 2 into 2 plus 1, that's 5 radian per second. Got it?
5 radian per second is the right answer. But is it uniform circular motion? Is it uniform circular motion? No. Why no? Because The now omega omega is is not constant. It is not constant. It is time dependent. This is non-uniform circular motion, but still we are not started non-uniform. But yeah, numerical point of view, just we have seen one of the numerical in which we are getting this relation, which indicates omega is changing. Is there any problem? Is there any problem? Hmm? no. Sir. एक मिनट, hold on. रोहित जयराम को- All right. चलो आगे देखेंगे. Now this we have seen linear velocity in circular motion. ये हो गया था और ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, है ना? अरे देर Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर आया इसका, बोलिए. I minus j plus k और उसका मैग्नीट्यूड आया √3. Okay, how did you do it? V is equal to omega cross Rn. डिटरमिनेंट से कैसे करते हैं? इसमें ऊपर वाली Sir, रो वो में आई जे के determinant डिटरमिनेंट इज इजी, minus बट j. डायरेक्ट भी कर सकते हो. तो इसमें आई का ऑप्शन 1 है, जे का भी 1 है, के का 0. के नहीं है तो 0. इसमें देखो, नहीं ओमेगा का पहले लिखना पड़ेगा ना. देखो ओमेगा फर्स्ट है तो ओमेगा का पहले लिखना पड़ेगा. आई का 0 है, आई इज 0 1 1 एंड आर बाद में है तो आर का बाद में लिखेंगे, थर्ड में लास्ट में 1 1 एंड 0. नाउ क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट उसकी रो एंड कॉलम को ऐड करो, फर्स्ट रिमेनिंग जो है फर्स्ट एंड लास्ट से मल्टीप्लाई करो एंड माइनस दिस. तो 1 into 0 that will make it 0. 1 into 1. सेकंड एलिमेंट के सामने क्या लिखते हैं, माइनस. ये जब सेकंड एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे माइनस जे क्या पाएगा. दैट द रूल वी हैव सीन. Yes, इसके sir. रो एंड कॉलम को ऐड करो, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 0 into 0 0 हो जाएगा एंड देन 1 into 1. लास्ट वन इसके क्या प्लस आएगा इसका. इसके रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे तो दिस विल बी विजिबल ओनली नाउ. 0 and 0 into 1 that is 0 minus 1 into 1. तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप है ना, प्लस जे कैप. इट्स ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. माइनस के कैप तुमने, यू टोल्ड मी आई माइनस जे तो मैंने प्लस R को ओमेगा लिख दिया था. यस. तो डेलिबरेटली मैंने चेंज किया था सो दैट यू शुड नॉट डू द मिस्टेक अगेन दिस. जनरली जो फार्मूले में जो पहला है फर्स्ट वेक्टर उसकी कोएफिशिएंट लिखने, वो मैंने सेकंड उसमें दिया था. तो मिस्टेक होती है, यू शुड बी वेरी केयरफुल. एज फार एज वेक्टर इज कंसर्न इट इज रॉन्ग, बट मैग्नीट्यूड में मिस्टेक नहीं होती. मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही आएगा, बट एज फार एज वेक्टर इज देयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसका मॉड निकालना है वेक्टर का, कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करते हैं अंडर रूट के अंदर, बिकॉज ऑल आर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट 90 डिग्री वाले हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ये इनके अंडर स्क्वायर होके प्लस होके अंडर रूट के अंदर √3. गॉट इट? मीटर पर सेकेंड. यूनिट नहीं दिया तो छोड़ सकते हैं इसको. क्लियर टू एवरीवन? नो प्रॉब्लम.
Is there anybody facing problem in this? No, sir. Okay, note down. ये already we did it in the vectors. कैसे निकालते हैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाते हैं ना। आपका कुछ फिर से टेस्ट पोस्टपोन हो गया है बिकॉज ऑफ दैट those who joined late could not complete this first chapter. I got the message to postpone it. Okay, note down. Yeah, let's see what was the next. ये आपको दिया था ना, तो इन फर्स्ट केस इट इज गोइंग क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो है एरो लगा लेंगे सभी क्वाड्रेंट में, एंड वी हैव टू चेक इट इन दिस। जस्ट म्यूट करो whose sound, whose mic is on, please switch, mute it. हर्षित शर्मा। देखो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम वेलोसिटी लेंगे लाइक दिस, तो आई कंपोनेंट विल बी पॉजिटिव, जे कंपोनेंट नीचे की तरफ जा रहा है माइनस जे का। इसमें दिया क्या वेलोसिटी? यस, आई कंपोनेंट इज पॉजिटिव, जे कंपोनेंट इज नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द आंसर कमिंग। यस सर, ना देखो ऐसा, ये कंपोनेंट इसका इधर आएगा और ये कंपोनेंट नीचे आएगा। कैसे बताया था मैंने? वहां पे यू टू एज्यूम एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, उसकी टिप पर, उसके आई मीन टेल पर, तो ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, इधर एक्स एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस विल गिव यू एक्स कंपोनेंट दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, इधर परपेंडिकुलर डालेंगे, कंपोनेंट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड दैट इज माइनस y axis, that therefore minus j cap. If you see it, I component is positive, j component is negative. तो फर्स्ट का आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लेट्स सी आंसर। ड्रॉ वेलोसिटी टेंजेंट, देखो यहाँ पे क्लू दिया हुआ है आपको, ड्रॉ वेलोसिटी टेंजेंट टू द पाथ टेल ऑन द पाथ, ये इसका जो एरो का टेल जो है पाथ पर होना चाहिए, देन यू टेक द कंपोनेंट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसका आंसर फर्स्ट है। नाउ इफ इट गोज काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा, तब अभी आप अपने एरो ऐसे आएंगे, टेल ऑन द पाथ होना चाहिए, तो इसका ये कंपोनेंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नहीं ये आई मीन आई कंपोनेंट। यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट के लिए क्या गया था आंसर तुम लोगों का? तुम लोग होमवर्क देखते नहीं, आई डोंट कम टू नो क्या प्रॉब्लम है, आई हैव टू डिस्कस द थिंग्स विद द मैम। तुम लोग देखो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे, इफ वी टेक वेलोसिटी लाइक दिस, ये जे कंपोनेंट इज पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव दिया तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखेंगे आई कंपोनेंट नेगेटिव, तो ये प्लस दिया, ये रॉन्ग हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे आएगा, आई कंपोनेंट इज पॉजिटिव, जे कंपोनेंट इज नेगेटिव, ठीक है, लाइक दिस। थर्ड क्वाड्रेंट clear? First and third is the answer. Anybody has any doubt in this? No, sir. This will be I cap, this will be minus j cap. इसमें I cap minus j cap.
Okay, moving on to the next one. देख लीजिए इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, यू कैन जस्ट आस्क. Okay, then let's see what is next. This was done. यहाँ पे हो गया था. Now this one. What is the ratio of the angular speed and linear speed of the tape and midpoint of the second end of the clock? What will be the answer? Sir, average speed 1 Angular is speed का रेशियो क्या? Angular speed है yes, omega angular 1 by speed omega 2 दोनों का, whether it is midpoint और अभी जो आप जैसा किया था वैसे ही है जी. T2 by T1. ये all the points on this, suppose ये rotate हो रही है ऐसे, एक पॉइंट यहाँ पर है, I mean one is tip, another is midpoint. दोनों एक साथ अपना रोटेशन कंप्लीट करेंगे वापस, इट विल बी इक्वल होंगे दोनों, 1:1. दोनों पॉइंट का टाइम पीरियड कितना होगा, कौन सी है, सेकेंड हैंड. बोथ विल टेक हाउ मच टाइम, मिड पॉइंट एंड टिप दोनों एक साथ रोटेट करेंगे, दोनों 60 सेकंड्स लेंगे. और लीनियर स्पीड v1 by v2 is 2:1. omega 1 r1 omega 2 r2. omega 1 by omega 2 का तो रेशो 1 है, 1/1 हो गया ये. r1 कितना है, टिप जो है r होगी और मिड पॉइंट r/2 पर होगा, 2:1. टिप इज फास्टर, ये वाली इसकी जो स्पीड होगी टिप की, लीनियर स्पीड विल बी मोर एज कंपेयर टू मिड पॉइंट. ये v है और ये v/2 से, सेंटर वाला पॉइंट 0 पे, 0 लीनियर स्पीड. जितना डिस्टेंस दूर होता जाएगा, that particular point will have more and more linear speed because v is equal to omega r. Omega is going to be same. Farther the point, more is the linear speed. R is making the difference. Got it? Yes, sir. ये important question है. ये omega 1 by omega t का different ways they ask you. Various different ways they will ask you. Points are 3 points are there and let it be any point. Tape यहाँ पर all will have ratio 1:1:1. कितने पॉइंट है, because all the points will cover equal angle in equal interval of time. Time period is same for all the points. Therefore, angular speed is same, angular frequency same. Frequency will also be same. But linear speed depends upon the distance, how far the point is away from the center of rotation. यहाँ से कितना दूर है वो फास्ट होगा, नेक्स्ट वाली स्पीड कम होगी और कम होगी और कम होगी. 0 like this. Clear? Sir, Yeah. so can you please repeat it? Which part? Both? Yes, sir. देखो इसमें क्या है, all the points on second end of the clock, they will have the same time period, 60 seconds. So omega 1 by omega 2 is inversely proportional to time period, but both happen to be same because both are on the same second end of the clock, है ना? तो उनका all the points will take 60 seconds to go around.
So ratio will be 1:1. Let it be any point, not only tip and midpoint, कोई भी point हो यहाँ पर. This is same 1:1. V is equal to omega r होता है. Omega 1 by omega 2 तो 1 है यहाँ पे. R1 टिप का रेडियस r, मिड पॉइंट का रेडियस r/2. दिस इज r/2. मिड पॉइंट दिया तो r विल गेट कैंसल. 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा. रेशियो विल बी 2:1. टिप इज फास्टर. टिप की लीनियर स्पीड फास्ट है मोर. Yeah. Am I audible? Yes, sir. Yes, Manushree, okay. Sir, I'm little bit confused still. Where? Which point you are confused? Question, could you get the question? What is the ratio of angular speeds? किसकी angular speed निकालनी है? Tip and midpoint of the second end of the clock. फैन ब्लेड का भी अगर ऐसे फैन ब्लेड का ले लो ना, चलो क्लॉक का अगर तुम्हें आइडिया नहीं, फैन ब्लेड का टिप ले लो और मिड पॉइंट ले लो, तो दोनों की एंगुलर स्पीड सेम रहती है बिकॉज बोथ आर टुगेदर कवरिंग सेम एंगल इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. तो ऑल द पॉइंट्स ऑन द फैन ब्लेड हैव द एंगुलर स्पीड सेम. एंगुलर स्पीड जो है 2πf से भी निकाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी सेम है. बोथ आर पॉइंट्स आर कवरिंग सेम साइकिल in 1 second, same number of rotation in 1 second. तो ये तो 1:1 रहने वाला है. और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? V is equal to omega r more means अभी ओमेगा तो सेम है सभी पॉइंट्स के लिए. farther the point है ना, from the center of rotation more will be the velocity. if r goes up, v goes up. ठीक है, क्लियर. तो टिप जो है सबसे, टिप का रेडियस, टिप जो है it is the if it has the radius r, the midpoint will have radius r/2. So r2 will be r/2, r1 will be r. Yes or no? Yes, sir. एंगुलर स्पीड जो होगी किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की, किसी भी पॉइंट की, any 2 points or 3 points, all the points have the same angular speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, कोई फैन या फिर क्लॉक और एनी व्हील इज रोटेटिंग, है ना, तो सभी का टाइम पीरियड सेम रहता है. तो इसीलिए सभी पॉइंट्स का, सभी पार्टिकल्स का, उसमें फिक्स पार्टिकल है सब अपनी अपनी जगह पर सेम, और ऑल आर रोटेटिंग विद द सेम टाइम पीरियड. सबका एंगुलर स्पीड सेम होती, बट linear speed will be different because it depends upon how far away it is from the center of rotation. जितना दूर होगा पॉइंट, सपोज ऐसे कोई रॉड रोटेट कर रही है, दिस इज रॉड रोटेटिंग, तो सारे पॉइंट्स एक साथ ही है, ओमेगा सबका सेम रहेगा. बट फारदेस्ट पॉइंट जो है उसकी जो वेलोसिटी होगी ओमेगा r1, सपोज दिस इज द डिस्टेंस r1, मिड पॉइंट की r1/2 हो जाएगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और नीचे पॉइंट सेंटर की तरफ आएगा वो और स्लो. जो फारदेस्ट पॉइंट होगा इट इज कवरिंग मैक्सिमम डिस्टेंस, farthest point is covering maximum distance in same time period. तो इसकी linear velocity has to be more. ये वाला पॉइंट जो है कम circumference कवर कर रहा है, इसके लिए same time interval में it will have lesser linear speed. next point और कम, छोटा रेडियस, छोटा सर्कल बनेगा, उसकी linear speed same time interval में स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. Yes, sir. तो सबका सर्कमफ्रेंस छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे पॉइंट क्लोज आता जा रहा है सेंटर के, दैट कवर्स लेसर डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, so it will have less speed, less linear speed. Clear? Okay, shall I move on to the next one? Yes, sir. Okay. तो देखो ये हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कर रहे थे, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन. सिंबल इसका AC है ना. तो इन एनी
in any circummotion, particularly uniform circummotion, even if speed is constant but velocity is changing, direction is changing. So change of direction is done by the acceleration called centripetal acceleration. Its value is given by v square by r, and since v is equal to omega r, we'll put here. So we'll add this relation omega square r. Since omega is 2 pi f, put the value of omega, we'll get this relation. Since it is acceleration, it's angular. It's a since it's the rate of change of. In fact, ये जो acceleration है rate of change of linear velocity ही होगा. तो unit क्या होगा? Meter per second square. Direction is towards the center from the position of the particle. यहाँ पे particle है तो center इस तरफ है, उसका तो इधर होगा. जब particle यहाँ पहुंच गया तो center नीचे उसके respect में center नीचे है तो नीचे air हो जाएगा. So always towards the center. Therefore, it is not the constant vector because ये इसकी direction change हो रही है. Centripetal acceleration is also changing its direction. Centripetal, centri means center, petal means towards center. Centripetal का literal meaning is towards center. That acceleration which is always towards the center is called centripetal acceleration. Role of this acceleration is to change the direction of velocity, change the direction of moving particle in the circummotion. It will always make 90 degree with the velocity. So therefore, it can only change the direction, not the magnitude of velocity. Magnitude of velocity. केवल direction ही change कर पाता है. 90 degree पे अगर acceleration होगा, तो वो speed बढ़ा नहीं पाएगा या कम नहीं कर पाएगा. Direction change कर सकता है बस. Now can we do it? Can we prove it? This relation? Yes, we can do it. देखो कैसे करेंगे इसका proof. See, suppose particle is going round in anti-clockwise direction. At certain point, it is at the point P. Its velocity is directed this side. After time delta t, it is reaching here, and its direction of velocity will be this side at point P dash. Now, if we indicate this v, this vector here, और ये वाले वेक्टर को यहाँ दिखाएं, इसको v dash ले लेते हैं. मैग्नीट्यूड तो सेम है. जब यूनिफॉर्म सर्कुममोशन की बात हो रही, तो जो v है और v dash दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे. डायरेक्शन एक की तरह है. तो यहाँ पे हमने ये वाला वेक्टर यहाँ दिखाया, इसको यहाँ दिखाया. तो v dash इस तरफ है और ये v इस तरफ है. Now, if we follow the vector law, देखो वेक्टर लॉ फॉलो करते हैं. वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी will be equal to vector AC. How can we save it? कौन से लॉ से लिखा हमने ये? कौन सा लॉ है? How can we say this vector plus this vector is equal to this vector? Triangle law of vector. Triangle law of vector addition. ये दो वेक्टर फॉरवर्ड ऑर्डर में, थर्ड वेक्टर टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर will be the sum of that two vectors. Now you see here, ये जो वेक्टर BC है, that is nothing but AC. इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस हो जाएगा, माइनस AB. तो AC क्या है? वेक्टर V है. वेक्टर लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है. और ये कौन सा वेक्टर है? V डैश है. दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस है, इसलिए चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे इसको. व्हाट एरो में नहीं लगा रहा हूँ डेलिबरेटली. चेंज ऑफ वेलोसिटी बिकॉज वन वेलोसिटी. एक मिनट, V डैश पहले आएगा.
AC is V dash. Final velocity minus initial. तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम डेल्टा वी सिंबल दे दिया BC को। डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा। यू डोंट हैव टू प्रूव इट, डायरेक्ट तुम लिख दो इसको, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस यू डोंट हैव टू डू इट। चलो आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, नाउ यू सी ये ट्राइंगल देखो, यू सी केयरफुली, यहाँ व्हाट वी हैव डन, वी हैव शोन द rotation of particle at point P velocity is V, at point P dash velocity is V dash, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल, कौन सा मोशन है, यू सी हमें। नाउ यू सी, अभी ये वेक्टर को हमने यहाँ दिखाया है, इसको यहाँ दिखाया, और ये इनका जो है डिफरेंस ये इधर आ गया। तो अभी ये जो ट्राइंगल है OP एंड ये वाला ट्राइंगल C सिमिलर, क्यों? देखो ये एंगल जो है, ये जो 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 टेंजेंशियल वेक्टर्स जो एंगल बनाते हैं सेंटर में, अब सेम एंगल उनके बीच में भी बनता है, यू कैन सी। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे कोई है, एक वाला एक इधर है एक इधर है, उनकी जो रेडियस आपस में एंगल बना रही है 90 डिग्री, ये दोनों भी आपस में सेम, इसको इधर शिफ्ट करो, दे विल मेक द सेम एंगल। तो उनकी जो रेडियस एंगल डेल्टा थीटा बना रही है, तो दे विल आल्सो बी मेकिंग एंगल सेम, ये डेल्टा थीटा हो जाएगा, है ना। और ये एंगल, ये जो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों रेडियस है, ये अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इसमें भी ये एंगल होंगे इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल, ये जो आपके अंदर बन रहा है और ये इनके जो टेंजेंशियल वेलोसिटी के लीनियर वेलोसिटी के, ये दोनों सिमिलर होते हैं हमेशा, तो इनके साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये वाली साइड अपॉन दिस साइड, ये डेल्टा V बाई V, इसमें अपोजिट एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, डेल्टा R। ये अगर हमने ये यहाँ पे इसको हम डेल्टा R ले रहे हैं, दिस सिंबल, ये देखो डिस्टेंस का सिंबल है ये, नहीं अपना डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R, ठीक है, डेल्टा R ले लिया डिस्प्लेसमेंट, और ये R डिवाइड बाई दिस साइड, इसकी ये V से डिवाइड किया, इसको ये वाली साइड R हो गई। यहाँ से डेल्टा V मिल गया हमें, डेल्टा V इज ये डेल्टा R इज R, V को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो चेंज वेलोसिटी का हमें रिलेशन मिल गया, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन वी कैन राइट इट वेरी इजीली, एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन विल बी, अभी हमें डेल्टा V बाई डेल्टा T, इसको यहां तक आने में डेल्टा T टाइम लगा, P से P डैश तक, बट ये तो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज एक्सेलरेशन है। हम तो ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कौन सा होता है, एट सडन मूवमेंट, ये कौन सा होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, देखो चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ रही, तो सिंबल AC। नाउ दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, तो लिमिट ऑफ टाइम इंटरवल शुड बी 0, शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये हमने लिखा एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन, तो लिमिट ऑफ टाइम इंटरवल शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, ये क्या, ये हो जाएगा आपका, तो हम थोड़े लिए dV बाई dt लिख रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम dV बाई dt में लिख सकते हैं, देखो ये अगर ये बड़े चेंजेस है, और हम यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dV बाई, ये छोटा हो जाएगा फिर ये, तो यहाँ पर देखो dV बाई dt की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, क्या आएगा, इसको भी फिर dr लिखना पड़ेगा, ये भी छोटा करना पड़ेगा, डेल्टा मीन्स बिगर डिफरेंस और d मीन्स स्मॉल डिफरेंस, तो dV की वैल्यू पुट करो यहाँ से, ऊपर से dr V बाई R, नीचे dt है, और dr बाई dt, ये dr बाई dt है, दिस इज नथिंग बट ए चेंज ऑफ पोजीशन, तो ये वेलोसिटी हो गई, ये कंप्रेस होकर बहुत छोटा होता जाएगा, ये ट्रायंगल बहुत छोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट दिस बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर,
that is nothing but a linear velocity. That is v, already v by r तो है इधर, that becomes v square by r. That's how it is proved. ठीक है, देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्या किया हम लोगों ने इसमें. लिसन केयरफुली, आर यू देयर तुम लोग लाइन पर. ये Yes, आप sir. ये छोड़ सकते हैं. दिस आई हैव शोन यू, बट यू कैन सी दैट एक वन वेक्टर v और v डैश इधर है, तो उनका डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी देगा, है ना. अभी ये ट्रायंगल ये जो इधर बन रहा है और ये आपस में सिमिलर होंगे, तो देयरफॉर उनके साइड्स के रेशियो भी हम इक्वेट कर सकते हैं. ये वाली साइड dr by r शुड बी इक्वल टू डेल्टा v by v. इसका तो डेल्टा v को हमने एक तरफ किया, बाकी v को इधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया. अभी ये बिगर डिफरेंस है, स्मॉलर डिफरेंस के लिए d लिखते हैं, है ना. तो d लिखा है था, यहाँ पर डेल्टा को d लिख दिया. अभी हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल अप्रोचिंग जीरो, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाता है ना. तो dv की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, और dr by dt इज नथिंग बट ए वेलोसिटी, और v by r, ये v स्क्वायर बाय r. यही तो प्रूव करना था हमें. दैट्स ऑल, यू कैन जस्ट लीव इट हियर. सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का डेरिवेशन नहीं है. ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ, कैसे लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ लीनियर स्पीड डिवाइड बाय रेडियस. ठीक है, so if it is taught to you in the class, you are supposed to know the derivation. It is there, the part of our textbook में है derivations. सर या सर dr by dt वेलोसिटी कैसे होगा? चेंज, अब देखो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, और टाइम इंटरवल dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, है ना. बट ये जब बहुत क्लोज आ जाएंगे तो इट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. दैट इज नथिंग बट ए वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी. इसको सिंबल आप कुछ और भी दे सकते हैं. डेल्टा आर रेडियस के साथ कंफ्यूजन हो रहा है ना, यू कैन गिव इट डेल्टा वाई दे सकते हैं इसको सिंबल, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी. डेल्टा वाई इज द डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, कैसे शॉर्टर डिस्टेंस लेंगे. सर समझ में आया. ओके, रेडियस के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, बट आई थिंक आवर टेक्स्ट बुक राइट लाइक दिस ओनली, तो इसीलिए मैंने भी सिंबल चेंज नहीं किया. डेल्टा आर डी स्मॉल, इसको रेडियस को कैपिटल आर ले लिया, इसको डी आर ले लिया. इट इज नॉट द चेंज ऑफ रेडियस. लिख दो यहाँ पे डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to P dash, यहाँ पे फ्रॉम P to P dash. All right. Yes, sir. इसका एक और मेथड है करने का, अपनी आई थिंक इन आवर टेक्स्ट बुक इट इज नॉट गिवन. ऐसे कर सकते हो, देखो इजी मेथड है वो, देखो ऐसे कर सकते हो तुम लोग. एनीबॉडी इज इन द स्टेट बोर्ड, Yes, वो sir. लोग कर सकते हैं. स्टेट बोर्ड में दोनों मेथड दिए. देखो यहाँ पे ऐसे, ये पार्टिकल P है, इसके रेडियस पे अभी यहाँ पे R रेडियस रहेगा. देखो, अच्छा कैपिटल R ही ले लेते हैं, इसको कैपिटल R लेते हैं. ये कंपोनेंट, ये थीटा है, ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा R cos थीटा. थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं ना, बिकॉज़ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, और प्लस ये वाला कंपोनेंट R sin ओमेगा टी. अभी डिफरेंशिएट करो dr by dt. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा माइनस के साथ. यहाँ पे माइनस होता है, माइनस मीन्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर. तो यू कैन सी योर टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये दिस बोथ द मेथड्स आर गिवन. दिस इज इजी मेथड. रेडियस का वेक्टर लिखा उसके कंपोनेंट फॉर्म में, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, आई मीन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी. फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो वापस से ये आर आ जाएगा. यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये रिलेशन ऐसे ही आ जाएगा आर.
तो ये 2 बार डिफरेंशिएट करने से दिस इज AC, तो ये वाला रिलेशन मिल जाता है हमें डायरेक्शन के साथ, माइनस के साथ। माइनस इंडिकेट डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम आई कैन जस्ट हेल्प यू। So this is the derivation, the way it is given in NCERT book derivation, you can just do it if it is asked. Otherwise, you have to remember the formula for numerical point of view. I request you to make the numerical, आपकी जो फार्मूला नोटबुक बना लीजिए। ये तो नोट्स आप यू आर राइटिंग ऑन योर नोटबुक है ना, तो ये इसकी नोट्स बना रहे हैं। आई होप एवरीबडी इज जस्ट डूइंग इट प्रॉपर नोट्स, दे विल जस्ट सेव योर टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट यू मेक द फार्मूला नोटबुक आल्सो। जैसे करंट चैप्टर चल रहा है ना, इसके कौन से अभी सपोज ये दिस फार्मूला ये वाला सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का v square by r which is also equal to omega square r, you know, so at least these 2 formulas are very frequently required in subsequent chapters also. So anytime if I ask you what is the formula for centimeter acceleration, you have to reply either of 2 relations. Okay, either this or this. To keep writing formulas on separate notebook, only formula notebook, so that if you keep revising from one source, you will remember always. You can recall also if you forget easily. ठीक है, तो ये formula हो गया centimeter acceleration का। इसके numericals we'll see, but some more points let us discuss. No problem. Are you there? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. तो देखो इसको, इसके कुछ इसमें अगर ये एक्सीलरेशन है, इसमें अगर मास से मल्टीप्लाई कर दे m into सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, दिस इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स यहीं पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फोर्सेस, बट यहाँ पे एटलीस्ट वी कैन राइट द सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला। सेंटीपिटल फोर्स FC, C स्टैंड फॉर सेंटीपिटल, F स्टैंड फॉर फोर्स, इज मास इनटू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का ये वाला फार्मूला या सेकंड वाला फार्मूला ओमेगा स्क्वायर आर। बहुत अच्छा, आर हमने कैपिटल लिया तो कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। रेडियस का सिंबल क्या दिया आपने, दैट डिपेंड्स। यू कैन जस्ट टेक स्मॉल आर और कैपिटल आर, डजंट मेक डिफरेंस। यू शुड नो आर इज द रेडियस। ठीक है, तो mass will also be there in the relation, because mass multiplied with the acceleration gives us the force. Newton's second law. This comes from Newton's second law. ठीक है, तो सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंटीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, or we can say force directed toward the center of the circle always, which help us to change the direction of circulating particle. यूनिट न्यूटन होगा इसका, फोर्स है तो यूनिट न्यूटन होगा। ऑलराइट, Yes, sir. ओके, तो इसके क्वेश्चंस है आई थिंक एनसीईआरटी बुक। एक तो ये दिस इज गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज लेट इट बी नो होमवर्क, इसको आप नोट कर लो और आपको आंसर जो है, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। Object moves at constant speed along the circular path in horizontal xy plane with the center at the origin when the object is at x is equal to -2. You know, it's somewhere here. Yeah. Its velocity is given downward, minus j cap. It is heading downward. तभी तो minus j cap दिया है। Give the object's velocity, उसकी velocity लिखनी है, and acceleration at y is equal to 2, यहाँ कहीं पर y is equal to 2 will be somewhere here at this point. Say for example point A पर उन्होंने दे दिया है आपको velocity, B पर लिखना है आपको। ठीक है, तो you have to write in the vector form because they have given you in vector form, j cap I cap के form में लिखना है। acceleration also, velocity also, means magnitude and direction both you have to write. डायरेक्शन में आई कैप, जे कैप, के कैप, या माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, एनी ऑफ द यूनिट वेक्टर्स कैन कम।
प्लस या माइनस, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कहाँ पे पार्टिकल है, दिया एवरीथिंग इज गिवन. All right, note down and do it seriously. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर एक्सेलरेशन बोला है तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटली बताना है. एक्सेलेरेशन देखो, यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है सर्कुलर मोशन में, वो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन यहाँ पर, बिकॉज ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड है ना, कांस्टेंट स्पीड है, तो ओनली वन एक्सेलेरेशन विल बी देयर, दैट विल बी सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन. अच्छा, इसमें यू मे बी हैविंग सम मोर डाउट्स. और कोई डाउट आ रहा है कि आपको रिगार्डिंग एक्सेलेरेशन? यहाँ पे तो ऑफ कोर्स सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन है. एनी अदर डाउट्स आर कमिंग टिल नाउ एक्सेलेरेशन के बारे में? Anybody is having some doubt about the acceleration and centripetal acceleration or something like that? Can it have some more acceleration apart from centripetal acceleration in uniform circular motion? Uniform circular motion में कुछ और पूछ सकते हैं क्या? जैसे suppose particle goes in the round, ठीक है, with the constant speed, uniform circular motion में. एक तो centripetal acceleration पूछ सकते हैं आपसे. Anything else can be asked related to acceleration? बोलिए. एवरेज एक्सेलरेशन. यस, वेरी करेक्ट. देखो एवरेज एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं. देखो एवरेज एक्सेलरेशन, इफ आई टेल यू ये पॉइंट ए है, ये बी है, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द करेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए एंड बी, यहाँ से यहाँ तक जब आ गया एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? बोलो, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? E minus U by T. चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये v और ये bv है, तो ये v2 डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस ले लें, अपर डायरेक्शन प्लस ले लें, तो v ओके, ये v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल, तो v2 इज डाउनवर्ड, ये v2 है माइनस v, और v1 इज अपवर्ड, तो ये माइनस v. यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल सकते हैं, हाफ टाइम. अगर हमें रेडियस दे देंगे तो आधा टाइम, हाफ टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड इज सर्कमफ्रेंस 2 पाई r by v, है ना. तो हाफ टाइम जो है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, t/2 इतना, तो ये आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा पाई r by v. क्या आ जाएगा ऊपर? 2v है ना, माइनस 2v, तो माइनस 2v स्क्वायर बाई पाई r, ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा ना एवरेज एक्सेलरेशन का. तो मैग्नीट्यूड पूछ लेंगे, मैग्नीट्यूड में माइनस हटा देंगे. जनरली मैग्नीट्यूड ही पूछते हैं, बिकॉज somebody में गो क्लॉकवाइज, कोई ऐसे ले सकता है, तो उसका फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पर. तो इन दिस सिचुएशन दे विल ऑलवेज आस्क यू मैग्नीट्यूड. मॉड, इसका मॉड ले लेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड 2v स्क्वायर बाय पाई r, ऐसा. क्लियर? तो एवरेज एक्सेलरेशन जो हमने एक मुझे थोड़ा सा, इट इज नॉट रिटन प्रॉपर, थोड़ा सा मैं क्लियर एक बार. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी upon time. So what you have to do for that particular two situations, you have to see the change of velocity. है ना, अगर ऐसे सिचुएशन हो, can you tell me now how much will be the change of velocity? Change of velocity किससे निकालते हैं? वेक्टर से निकालना पड़ेगा हमेशा आपको, है ना. वेक्टर सीखा हम लोगों ने. यहाँ से 90 डिग्री घूमने के बाद चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? बोलो. ये भी है, ये भी है.
how much will be the change of velocity now? Bole, how much will be the change of velocity? In the uniform circular motion, UCM. Change of velocity is v2 minus v1. तो वेक्टर डिफरेंस का फार्मूला याद है आपको? अंडर रूट ऑफ a minus b. वेक्टर डिफरेंस का फार्मूला v1 का a स्क्वायर स्क्वायर प्लस b minus स्क्वायर 2b माइनस 2ab cos थीटा ना, ऐसे ये फार्मूले से दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, cos थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये जीरो हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री पे दो वेक्टर होते हैं, उनका वेक्टर सम भी v√2, वेक्टर डिफरेंस भी v√2, तो v√2 यहाँ पे v√2 लिखना पड़ेगा। टाइम निकाल लेंगे, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैसे निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड, तो कितना सर्कमफ्रेंस है? 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा? 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। स्पीड तो v है, वो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। So these can be the questions related to basic accelerations whatever we have done. और ये फिर ये एक्सेलरेशन कौन सा ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, यहाँ पर जो है यहाँ पर हाँ? अगर इसका भी तुम बेसिक ये जो एवरेज है, एवरेज एक्सेलरेशन का टाइम इंटरवल छोटा करते चले जाओ तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, और उसी को सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोलेंगे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर और नॉट? आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया आपको? एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, कोई भी सिचुएशन हो सकती है चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट कैन बी यूनिट, इट कैन बी वन डायमेंशन मोशन, इट कैन बी टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन में तो वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए, और दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का टाइम इंटरवल निकालना पड़ता है, कभी कभी डायरेक्ट दिया होता है, कभी हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। और तो एवरेज वैल्यू जो थी लार्ज टाइम इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल को छोटा करते जाओ तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी। अगर वो पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वही एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहलाएगा। ऑलराइट, so keep retaining the things which we have done in the first chapter, second chapter, जो भी हमने पीछे पढ़ा है वो सब आपका बेसिक्स है। They will be there apart from the whatever new we are reading. All right, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आपको डायरेक्शंस में कंफ्यूजन आपकी क्लियर करेंगे ये, if you do this question, and vector knowledge also, it will strengthen your vector knowledge. Huh? You are telling anything? I said done. Okay, ठीक है, अभी आंसर हम नहीं, I am not asking you answer. Let everybody complete, then tomorrow we'll discuss. Okay. What is the answer of this question? What is the value of dot product of centripetal acceleration and linear velocity? AC stand per centimeter acceleration, V stand per linear velocity. 0. कैसे जीरो? Why सर zero? हो जाएगा ACV cos थीटा 90 है तो 0. Okay. Dot product में cos theta आता है, and cos 90 is 0. So dot product of centripetal acceleration and linear velocity will always be 0, because दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा। एक तो सेंटर की तरफ रहेगा, दूसरा टेंजेंशियल रहेगा। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, अदर वन इज रेडियल, वी आल्सो कॉल इट रेडियल एक्सेलरेशन, यू नो। एक मिनट, जस्ट लेट अस गो बैक टू द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस। शैल आई राइट देयर रेडियल एक्सेलरेशन? ओके, let me tell you third name also, centimeter acceleration लिखा तो है मैंने यहाँ पर, radial acceleration, because always along the radius। यहाँ पे
towards center along the radius. यहाँ पे let me add some more point. Towards center along the radius. और इसका एक तीसरा नाम भी है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का. Does anybody know third name of the centripetal acceleration? I'll tell you. जब हम तीनों एक्सेलरेशन कंप्लीट कर लेंगे, then I'll tell you third name can also be there of centripetal acceleration. Okay. So radial acceleration is because it is always along the radius. ठीक है, ये जीरो हो गया. क्लियर. क्रॉस प्रोडक्ट में नॉन जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको साइन थीटा आता है, तो यहाँ पर साइन थीटा विल बी 1 एंड ये आएगा और डायरेक्शन भी आएगी क्रॉस प्रोडक्ट में. ठीक है, तो दिस इज डन हियर इटसेल्फ. नो, यहाँ पे कंप्लीट हो गया. ऑलराइट. Yes, sir, I have a question. या Sir, what is the difference between centripetal and centrifugal? ओके. सेंट्रीफ्यूगल जब हम लोग व्हेन वी डू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल करेंगे. सेंट्रीफ्यूगल इज नॉन रियल. सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन मींस इट इज सूडो एक्सेलेरेशन, नॉन रियल. मतलब वो that is not present, but if we are working in the accelerated body, जिसको बोलते हैं accelerated frame of reference, जिसको non inertial frame of reference बोला जाता है, उसमें Newton's second law will fail when we apply F is equal to ma. That fails because of accelerated motion of the system. तो वहां पे हमें सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है. सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो वो हमें when we are working in the accelerated frame of reference, then only, otherwise there is no existence of centrifugal. It is pseudo force. Pseudo means, pseudo means non-real. Actual में नहीं है, but in certain, when we use the Newton's second law in the accelerated frame of reference, that time it is, that fails actually. वो fail हो जाता है accelerated frame of reference. उस समय centrifugal acceleration, centrifugal force का हमें help लेनी पड़ती. But in your textbook, it is not given. It is not given I mean, not deeply. इतना deep में नहीं दिया हुआ है. It is given only in the state board book. NCERT book में नहीं दिया है. Without that, we can solve any problem. Therefore, NCERT book they are not given, but state board की book में they are given you and not in detail. ठीक है. उसमें क्या लिखा है? If you have gone through centrifugal forces, ये क्या था? Centripetal force का opposite होता है ना, minus, outward होता है. ये inward है, so that is outward. That's why it is centrifugal forces opposite to the centrifugal force, and therefore formula remains same and minus आ जाएगा यहाँ पर सब. But it is not there when you are solving the problem being on the ground frame. जब हम अर्थ से problem solve कर रहे हैं तब उस समय होता ही नहीं है वो centrifugal force. We don't have to mention it, we don't have to write it. जब हम लोग accelerated frame of reference में होते हैं, हम भी घूम रहे हैं. Suppose you are sitting on the rotating disc and writing the Newton's second law. That time you have to introduce. Ground में बैठ के you are observing from the ground, then you don't have to use that centrifugal force. Okay, sir. ऑब्जर्वर के उस पर डिपेंड करता है. ऑब्जर्वर बस ये होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कभी कभी सूडो फोर्स बोलते हैं उसको. उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स इजी कि भाई हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ जाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं तो थोड़ा इजीली बन जाती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स इजियर, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ. ठीक है, चलो उसको अभी हम यहीं पे ब्रेक रोक रहे हैं. विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर. चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल है 4th चैप्टर का 10th. देखो, इंसेक्ट ट्रैप्ड इन द सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर moves along the grooves
steadily and complete 7 revolutions in 100 seconds. Frequency का formula क्या है? What is the angular speed? Angular speed निकालनी ओमेगा. उससे पहले हमें frequency निकालनी पड़ेगी. Linear speed भी निकालनी. Frequency number of revolutions upon time. Number of rotational revolution is 7. Time taken is 100. Frequency आ जाएगी. Frequency से angular speed आ जाएगी. Angular speed से angular speed से linear speed आ जाएगी. Linear speed and linear velocity magnitude same रहते हैं. Only thing that जब हम लोग velocity लिखते हैं तो direction भी mention करनी चाहिए. जब हम speed लिखेंगे तो direction छोड़ सकते हैं. ठीक है, तो F निकालेंगे, फिर ओमेगा निकालेंगे, फिर V निकालेंगे. और पूछ रहे इज द एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर? नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज नॉट द कांस्टेंट वेक्टर बिकॉज उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है. व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? v स्क्वायर बाय r. पुट द वैल्यू ऑफ v इज गिवन. v आपने निकाला है, यहाँ पर निकालेंगे आप लिनियर स्पीड. रेडियस इज गिवन. कैन यू कंप्यूट दिस? Solve example, you can just solve it and see, you can match your answer. Okay, Yes, sir. तो वही अभी हम थोड़ी देर पहले जो चेंज ऑफ जो हम डिस्कस कर रहे थे, एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ पे है वो पॉइंट. देखो ये मैंने वैसे तो जस्ट कट कर दिया है, बट फिर भी वी कैन सी इट. देखो ये वेलोसिटी पार्टिकल परफॉर्म. This can be useful for competitive examination only. देखो ये जेईई एंड नीट के लिए यूजफुल हो सकता है. जस्ट अंडरस्टैंड, डोंट राइट. इसको समझ लो. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था ये पूरा. पार्टिकल परफॉर्म यूसीएम विद द कांस्टेंट स्पीड v and radius r. Find average acceleration for quarter cycle. Magnitude only. Particle is in horizontal plane है ना, तो क्वार्टर साइकिल के लिए चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और टाइम भी निकालना पड़ेगा. ये फार्मूला यूज करेंगे. ये फार्मूला जो है, दिस इज द फार्मूला यूज. इसके लिए हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा. टाइम पहले हमने टाइम निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल लिया पूरा, फुल टाइम पीरियड 2 पाई r बाई v. उसको 1/4 कर देंगे. यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड. तो ये आ जाएगा टाइम इंटरवल. चेंज ऑफ वेलोसिटी हम वेक्टर डिफरेंस से निकालते हैं, अभी हमने डिस्कस कर रहे थे. ये वाला तो 90 डिग्री पे ये टर्म 0 हो गया, v√2 आ गया. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी और टाइम इंटरवल 1/4 ऑफ द साइकिल का टाइम डिवाइड कर दिया. तो ये आंसर आ गया. 90 डिग्री रोटेशन पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज वेलोसिटी, आई मीन एवरेज एक्सेलरेशन इतना होता है. ठीक है, फुल साइकिल में एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? यहां से यहां तक पूरा घूम गए. चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगी फुल साइकिल में. दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में. फुल साइकिल में एवरेज एक्सेलरेशन विल बी 0 बिकॉज नो चेंज इन द वेलोसिटी टेक्स प्लेस आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल. सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती. तो फुल साइकिल में एवरेज एक्सेलरेशन विल बी 0 इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो ये यू कैन लीव दिस. ये बेसिक्स आई टोल्ड यू, आपने जो बेसिक पढ़ के रखे हैं वो आपको हमेशा याद होने चाहिए. दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन बिटवीन. इस चैप्टर में देखो मैंने ये क्वेश्चन उसका इंट्रोड्यूस. क्वेश्चंस कैन बी मेड, एनी क्वेश्चन कैन बी मेड इन डिफरेंट इन ऑनगोइंग चैप्टर. जैसे कोई भी चल रहा है, बेसिक फार्मूले पे प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन जो सीखे हैं, प्रीवियस चैप्टर में फार्मूले सीखे हैं, दैट स्टैंड्स. फंडामेंटल विल स्टैंड एवरीवेयर. In every situation, questions can be formed. Clear? Okay, you can ask. if किसी को डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं. Anybody has any doubt in this? Since we have taken up this question, we have to know it. बोलिए. ये extra question है, not related to this chapter. Okay, we'll see some more question of NCERT book.
Shall I move to the next point? ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का. Stone tied to the end of the string 80 centimeter long is world mean rotated in the horizontal circle with the constant speed uniform circle motion. If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration? तो f is frequency कितनी होगी 14/25 नंबर ऑफ n by t है ना. अभी हमने इससे पहले भी जो क्वेश्चन देखा था यहाँ पे लिख के उसको बिगनिंग में पहले f डिस्कस कर लेते हैं. f is number of cycles divided by time. Number of cycles 14 divided by time 25 hertz. फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी ओमेगा is 2 pi f. सेंटीमीटर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो कौन सा एक्सीलरेशन होगा? सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होगा. ठीक है. अच्छा ये बताओ, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन? इंस्टेंटेनियस एट एनी पॉइंट ऑफ पोजीशन है ना. इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, उसमें कोई टाइम इंटरवल आपको नहीं दिया हुआ है. इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है. तो ओमेगा स्क्वायर आपसे निकाल सकते हैं. r is given 0.8, r is given 0.8 है ना. put the value, answer coming is this much. देखो 9.9 meter per second square along the radius at every point toward the center. ठीक है, तो this is the answer 9.9. very close to acceleration due to gravity है ना. Acceleration due to gravity is 9.8. You are able to create that much acceleration whatever Earth is able to create. Earth कितना acceleration create कर पा रही? 9.8. Being so huge, so big, it is able to create 9.8. But आप जो है stone को string में बांध कर that much or even more than that you are able to produce the acceleration. How come? Why so much big difference? Can somebody tell me? Earth being so massive is able to produce acceleration less than what you can produce be comfortably being so smaller than Earth. बोलिए, why it is so? This can be real value. Even you can make it double. अगर आप fast घुमा रहे हैं इसको, it can go 20, 30, 40. You can produce much more than the acceleration what Earth is able to produce. Why it is so? How it is possible? बोलो, can anybody tell me the answer of this question? सर में भी दूसरे प्लैनेट्स हम पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब उनकी ग्रेविटेशन हमें पुश कर रही है. दूसरे प्लेनेट का कोई रोल नहीं. देखो, अर्थ का जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक एज कंपेयर टू व्हाट फोर्स यू आर अप्लाइंग. आप कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. कांटेक्ट फोर्स है ये. तो अच्छा, आपने अभी ये पढ़ा नहीं है, फोर्स का चैप्टर आगे है. बट देन आल्सो whatever the force we apply on the string, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है. हम हाथ से उसको घुमाते हैं ना, तो कांटेक्ट फोर्स होता है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो दैट इज very massive as compared to gravitational force. Gravitational force is very weak as compared to electromagnetic force, which is billions of times more than gravitational force. 10 to the power, I think 38 times more. Hundreds of thousands of billions of times more. तो ये सब फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है. इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक दोनों इन्वॉल्व होती है. तो which is very strong as compared to gravitational force. ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में फोर्सेस के बारे में. गॉट इट? चलो, ये क्वेश्चन नंबर 17 था. यू कैन जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड इन योर सब्जेक्टिव पेपर. तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सेंटीमीटर एक्सीलरेशन. अगेन ये आपका रेडियस दी हुई है एंड एरोप्लेन
executes horizontal loop of radius 1 kilometer with the steady speed of 900 kilometer per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. यहाँ पे भी देखो इन्होंने कंपेयर किया है. कंपेयर मीन्स रेशियो निकालना है, AC अपॉन G का रेशियो निकालना है. AC निकाल लो आप यहाँ से, V पहले ऐसा यूनिट में निकाल लो और फिर AC बाई G निकाल लो. तो यहाँ पे देखो 6.4 आएगा. ठीक है, V स्क्वायर बाई R बाई G वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो. 6.4 G को इधर भेज देंगे तो AC 6.4 टाइम्स ऑफ G. देखो एरोप्लेन इज आल्सो प्रोड्यूसिंग 6 टाइम्स मोर देन व्हाट अर्थ इज प्रोड्यूसिंग. एरोप्लेन का इंजन is producing much bigger acceleration than the acceleration due to whole earth. यहाँ पे आंसर देखो इन्होंने, हाँ 6.4 G दिया है. कंपेयर में जनरली रेशियो निकालते हैं. It should have been 6.4. आंसर should have been 6.4. but ठीक है. It means they are asking find out the acceleration in terms of acceleration due to gravity. नहीं, find out the centripetal acceleration in terms of G. ठीक है, no problem. Okay. यूनिफॉर्म सेंटीमीटर यूनिफॉर्म सब हम डिस्कस करते हैं. तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा? स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज वेरी. कौन सी स्पीड? लीनियर स्पीड एंड ओमेगा दोनों. v इज इक्वल टू ओमेगा r, तो बोथ विल बी चेंजिंग. if v goes up, omega goes up. So if the speed, whether linear speed or angular speed, is not constant, then it will be non-uniform circular motion. Non-UCM we can call it. अगर non-uniform circular motion है, so who is changing the angular speed? That is certainly angular acceleration will do that. Angular acceleration जो है उसकी angular speed change करेगा, और tangential acceleration उसकी linear speed change करेगा. तो पहले angular acceleration पढ़ लेते हैं. So angular acceleration can also be two types. When time interval is bigger, then we call it average angular acceleration. उसको हम अल्फा, एंगुलर एक्सेलेरेशन का सिंबल अल्फा रहेगा. अल्फा एवरेज में सब स्क्रिप्ट में ए भी लिख देंगे या ऊपर बार लगा देंगे. इट इज द रेशियो ऑफ, अच्छा एंगुलर एक्सेलेरेशन है तो एंगुलर स्पीड से रिलेटेड होगा. तो रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है ना. जब एंगुलर वर्ड है तो एंगुलर वेलोसिटी से उसके साथ मतलब एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा. तो रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा ओमेगा को हम ओमेगा, डेल्टा मींस चेंज, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. इसकी यूनिट क्या होगी बोलो? ओमेगा की क्या होती है? रेडियन, और रेडियन पर सेकंड और टाइम की सेकंड. तो नीचे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर लाएंगे तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगी. तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर is the unit of angular speed, angular acceleration, sorry. ठीक है. और इंस्टेंटेनियस, अगर ये टाइम इंटरवल छोटा हो जाए, it is tending towards 0, then it will be called इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन. उसको हम रेट ऑफ चेंज से डिफाइन करते हैं. इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा बाई डी टी. और ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी. तो दो बार थीटा का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट अल्फा. ये ओमेगा आपको थीटा का फंक्शन दे देंगे, थीटा इज इक्वल टू से टी स्क्वायर. तो डी थीटा बाई डी टी कितना आ जाएगा? 2t. एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर 2 आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. तो दो बार करना पड़ेगा. तो हमें क्या मिल जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा. जैसे हमने क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क पे आपको, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा निकालना था. ओमेगा को फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो अल्फा मिल जाता है. जैसा कि हमने वेलोसिटी में भी पढ़ा था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलती थी, दो बार डिफरेंशिएट करो तो
एक्सेलरेशन मिलता था, यहाँ पर एंगुलर टर्म से डील करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो अल्फा मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी? अल्फा की डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की है। ओमेगा राइट हैंड रूल से देते हैं, फिंगर्स को इधर रखो, थंब ऊपर की तरफ आएगा, और अगर ये ऐसे घूम रही है, अच्छा एक मिनट, ये क्लियर है? अगर अगर जिस समय फैन को हम ऑन करते हैं, जब फैन को ऑन करते हैं तो ओमेगा एंगुलर स्पीड बढ़ती है, तो अल्फा सेम डायरेक्शन में होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ओमेगा की तो हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, हमने पढ़ा था, जब हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो ओमेगा ऊपर हो रहा है, और जब हम राइट टर्न लेते तो ओमेगा नीचे की तरफ होता है, पढ़ा था कि नहीं? तो ओमेगा की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं, बट अल्फा जो है वो ओमेगा पे डिपेंड करेगा। कैसे? डायरेक्शन, एज फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रही तो दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रही है, ओमेगा है तो ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है पार्टिकल, है ना, बट ब्रेक्स लगाए गए या हमने स्विच ऑफ कर दिया फैन को, तो अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, व्हील रोटेट कर रहा है, जब ब्रेक लगाएंगे उस समय ओमेगा एंड अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। जिस समय स्विच ऑन, जब हम एक्सीलेटर देंगे या स्विच ऑन करेंगे, है ना, फैन में भी जिस समय ऑन करते तो दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, जिस समय ऑफ कर देते हैं तो दोनों अपोजिट हो जाते हैं। अपोजिट होंगे तभी तो ओमेगा डिक्रीज होगा, कॉमन सेंस है, जब अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होगा देन ओनली ओमेगा विल गो डाउन। तो अगर फैन का एग्जांपल लें, फैन में हमने देखा था कि नीचे की तरफ है ओमेगा, तो अल्फा भी नीचे रहेगा जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं। जब हम फैन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो अल्फा ऊपर की तरफ रहेगा, ओमेगा अभी भी नीचे की तरफ है, because that depends upon the direction of rotation. So when we switch off, alpha will be up, omega will remain downward. तो धीरे धीरे स्पीड 0 हो जाती है, एंगुलर स्पीड। बोलिए, इसमें डाउट है आपको डायरेक्शन में? जैसे हम गाड़ी चलाते हैं सपोज, है ना, तो जब स्पीड बढ़ती है तो अपनी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं, वेलोसिटी तो आगे की तरफ है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो जाता है, तभी तो गाड़ी रुकती है। ऐसे इसमें भी जब हम पावर ऑफ कर देंगे फैन का तो अल्फा, अभी फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन शुरू हो जाता है, तो अल्फा अपोजिट आता है ओमेगा के। एनी डाउट? आदित्य Yes, sir. Yes, sir. बोलो, डायरेक्शन क्लियर? डायरेक्शन देखो इसमें, Yes, sir. अच्छा ये आंसर दे सकते कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड का डिस्कशन है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ टिप ऑफ द सेकंड एंड ऑफ द क्लॉक? हम लोग सेकंड एंड ऑफ द क्लॉक पे काफी क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा बोलो? Zero. व्हाई? हाउ? Sir, velocity constant है. ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, अल्फा इज 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता, क्यों? ओमेगा कांस्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन का काम क्या है? एंगुलर स्पीड को बढ़ाना या घटाना? तो वो तो चेंज ही नहीं हो रही, इट इज नॉट चेंजिंग, तो देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गॉट इट? Yes, ओके, sir. इस फार्मूले का क्वेश्चन दे दो तुम्हें, आप ये वाला इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्फा निकालनी है, तो इसका ये क्वेश्चन है, देखो आपके पास, थीटा इज गिवन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकंड। 1 सेकंड में आपको पहले एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? एंगुलर स्पीड मिल जाएगी, ओमेगा मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालने है बस, और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, टी की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी 1 सेकंड आपको,
पहले आपको टी के टर्म्स में मिल जाएगा रिलेशन ओमेगा का, लास्ट में टी पुट कर देना, ठीक है। तो ये होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। Done, sir. Okay, just few minutes are remaining, we can do some more points. Tomorrow we'll start the new chapter. It is almost finished. नेट एक्सेलरेशन कल सीख लेंगे, इसमें कितना होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आल्सो अभी सीखते थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 80, है ना? इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी बोलो? व्हाट शुड बी द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? बोलो, कैन समबडी टेल व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? देखो, it is the rate of change of what? Linear velocity. No, rate of change of linear velocity will give you linear acceleration. Linear velocity को differentiate करेंगे तो linear acceleration मिलेगा, है ना? बट हमें tangential acceleration चाहिए, तो rate of change of speed, linear speed को जब differentiate करते हैं तो हमें tangential acceleration मिलता है। Can you see? It is rate of change of linear speed. तो जो linear velocity है उसका मॉड लेना पड़ेगा, स्पीड मतलब वेक्टर हटाना पड़ेगा पहले, फिर डिफरेंशिएट करना है उसको, फिर डिफरेंशिएट करना है। तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड, मतलब लीनियर वेलोसिटी का अगर तुम्हें सपोज ऐसे दे दिया, लीनियर वेलोसिटी इज 2i कैप, है ना? तो पहले मॉड ले लो 2ti कैप, तो मॉड ले लेंगे, i चला जाएगा तो 2t, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है डायरेक्शन हटा के। स्पीड को डिफरेंशिएट किया जाता है, वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट नहीं करना, हमें किसको करना है? स्पीड को डिफरेंशिएट करना है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड, तो यूनिट क्या रहेगा? मीटर। मतलब ये क्या करेगा? इट चेंजेस द लीनियर, ये एक्सेलरेशन क्या करता है? इट विल चेंज लीनियर स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो कांस्टेंट थी लीनियर स्पीड, है ना? लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट थी क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? Was the linear velocity constant in uniform circular motion? No, डायरेक्शन चेंज हो रही थी, लीनियर स्पीड कांस्टेंट थी। यूनिट तो वही रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा, तो v की वैल्यू ओमेगा r पुट कर दिया हमने, और डिफरेंशिएट करेंगे इसको, रेडियस कांस्टेंट है तो रेडियस को एज इट इज रख दिया, डी ओमेगा बाई डी टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अभी पढ़ा हमने। रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इज कॉल्ड अल्फा, तो अल्फा आर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा या अल्फा आर, ठीक है। और जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर बाद में रहेगा, इसमें आर बाद में ही रहता है। हमने वेलोसिटी भी तो सीखा था, वेलोसिटी का क्या था? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, आर लास्ट में, इसमें भी आर लास्ट में। रोटेशन मोशन में आर पहले आ जाता है, जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें सीक्वेंस में आर पहले आएंगे, इसमें आर लास्ट में आ रहे हैं। तो एटी इज अल्फा आर, अल्फा क्रॉस आर, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा के साथ रिलेटेड है। अगर अल्फा 0 है तो एटी भी 0 होगा, अल्फा नॉन 0 है तो एटी भी नॉन 0 होगा, दोनों इंटर रिलेटेड है ना। इसकी डायरेक्शन अगर लीनियर वेलोसिटी बढ़ रही है तो सेम लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, लीनियर वेलोसिटी घट रही है तो अपोजिट होगा। if v increases, at will be in the direction of linear velocity and vice versa. मेरा क्वेश्चन है, what is the value of tangential acceleration in uniform circular motion? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, बिकॉज अल्फा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर इज 0। वही सेकंड एंड वाला क्वेश्चन करें,
व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड एंड ऑफ द क्लॉक? तो 0 ही आएगा। यस सर नो? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये दोनों एक्सेलरेशन 0 होते हैं, केवल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। क्लियर? ठीक है। तो स्टेट बोर्ड की बुक में ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में सब पूछे उन्होंने। सेकंड एंड ऑफ क्लॉक का लीनियर वेलोसिटी कितनी है, लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है। नहीं, लीनियर एक्सेलरेशन अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, लीनियर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो ऑल द पार्ट्स आर कवर्ड देयर इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर थर्ड प्रमोशन स्टेट बोर्ड की बुक में। एनसीईआरटी बुक में इसके क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं। जस्ट फ्यू मिनट्स मोर। देखो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखो दिस इज ओवर, इनफैक्ट 80 इज ओवर, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता के वाइंड अप कर देता हूँ। दिस इज ओवर, यहाँ पे ही ओवर हो गया हूँ। नाउ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? देखो देखो यहाँ पे देखो, ये जस्ट सी, ये नोट में देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड, ये इसको मॉड लगा के लिखेंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी हमने पूरा ऊपर पढ़ा कि नहीं? ये सेम थिंग इज हियर। नो बट इफ अगर हमने मॉड नहीं लगाया, if we don't put the mod, then what will be this? This will be read as rate of change of linear velocity, and which will be equal to linear acceleration or net acceleration. कल हम ये नेट एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। नेट एक्सेलरेशन टुमारो विल डू इट। और इसका क्या मतलब होगा? व्हाट विल बी मीनिंग ऑफ दिस मॉड? अगर हमने बाहर लगाया तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। वी आर गोइंग टू डू नेट एक्सेलरेशन टुमारो, ये वाला। क्लियर? तो तीनों डिफरेंस में समझ में आ गया ये क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंस है तीनों में। दिस ऑलरेडी वी आर डन। दिस अगर मॉड नहीं लगाया वेलोसिटी में, बीच में यहाँ पे नहीं लगाया, तो इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। आई मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसे 3-4 नाम दे सकते हैं। मॉड बाहर लगा दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, विच वी आर गोइंग टू सी टुमारो। ठीक है? तो थोड़ा सा बाकी है, कल फिनिश करके हम लोग, जस्ट नेट एक्सेलरेशन ही बाकी है बस। करा दूं क्या? जस्ट 5 मिनट और इसका क्वेश्चन देके वाइंड अप कर सकते हैं। चलो ठीक है, टुमारो होमवर्क भी है, कल फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यू कैन सी दिस लास्ट पॉइंट, ये हमने डिस्कस किया। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट, एंड जेई का जो लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, विल डिस्कस आफ्टर योर डाउट्स आर टेकन इन दिस, आफ्टर यू कंप्लीट दिस। Anybody want to ask anything now? From my side, it is over up to here. Okay, then no, if you don't have doubt, you can just log out. You can log out those, just JEE का क्वेश्चन लेंगे, those who are JEE students and NEET. Only JEE, NEET के लिए भी नहीं है वो क्वेश्चन। NEET के लिए whatever I am teaching, it is sufficient. क्या क्वेश्चन था? कंप्लीट हुआ वो वाला रेन एंड अम्ब्रेला वाला था क्वेश्चन? Yes, anybody could complete that question? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. ये था वो रेन का ऐसा कहानी।
सॉरी, ये वाला था ना। Man running on a horizontal road at 8 km/h finds rain falling vertically. So suppose he is going this direction और रेन ऐसे आ रही है ना, तो देन ओनली उसको वर्टिकली ही कैन फील वर्टिकल, बिकॉज जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन में एंगल अम्ब्रेला को ट्विस्ट करना पड़ता है। खड़ा रहे, इफ ही इज स्टैंडिंग ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस, नाउ ही स्टार्ट मूविंग, तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी। इफ ही कीप मूविंग फास्ट एंड फास्ट, तो उसको इधर लाना पड़ेगा, ऐसा धीरे धीरे और आगे लाना पड़ेगा ना, क्योंकि रेन उसको ऐसे आती हुई दिखेगी अगर बहुत फास्ट आएगा तो फिलहाल वो थोड़ा स्लो आ रहा है, तो उसको अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। कितनी स्पीड से? 8 से। एंड जब उसने 12 बढ़ा ली तो और आगे लाना पड़ा उसको अम्ब्रेला। पहले ऐसे किया उसने, ऐसे रेन अपियर हो रही थी, अभी ऐसे, ठीक है। तो अगर हमने रेन को ऐसे लिया इस एंगल पे, क्योंकि ऐसे नहीं लेंगे, अगर हमने रेन को ऐसे लिया और वो इधर ही जा रहा है तो उसको और आगे लाना पड़ेगा, उसको कभी वर्टिकल फील नहीं होगा। जब ऐसे आ रही रेन और ही इज गोइंग दिस, अगर वो इधर जा रहा है, ओके ये वाला एरो हटा देते हैं, दिस एरो नॉट, अगर वो इधर जा रहा था तब रेन को हमें ऐसे लेना पड़ेगा। तो अगर हमने उसका मूवमेंट इधर दिखाया तो रेन को ऐसे लेना पड़ेगा। तो रेन कैसे? इसके दो कंपोनेंट, आई कंपोनेंट इज पॉजिटिव, जे कंपोनेंट नेगेटिव। तो ए आई कैप उसकी ले ली और बी जे कैप। ए एंड बी की वैल्यू निकाल देंगे अभी हम दो कंडीशन से। तो मैन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, ऐसे लेना पड़ेगा आई कैप की तरफ इधर, ठीक है। तो वी आर एम निकाल लिया, वी आर एम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी आर माइनस वी एम, तो ये आ गया आपका। तो ये इस तरह से वी आर एम इतना आ गया। नाउ फर्स्ट कंडीशन में क्या है? रेन वी आर एम एट दिस स्पीड अपीयर्स टू बी कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे रेन आ रही, ये वी आर एम है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसमें आई कंपोनेंट शुड बी 0, वर्टिकली डाउनवर्ड मीन्स आई कंपोनेंट शुड बी 0। तो आई का जो ये कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, a माइनस 8 शुड बी 0, क्योंकि वर्टिकली फील हो रही। जे कंपोनेंट होगा केवल, आई कंपोनेंट, बिकॉज उसमें क्या होगा, जितना रेन का ये कंपोनेंट है और मैन का अपोजिट कंपोनेंट उसको न्यूट्रलाइज, बिकॉज माइनस है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर रेन का ये कंपोनेंट 10 है तो ये भी 10 इसका माइनस करने से कैंसिल कर देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट उसको फील होगा। तो ये दोनों a and 8 should be equal, means a should be equal to 8, तभी ये 0 हो जाएगा ये कंपोनेंट। तो i कंपोनेंट आ गया आपको, ये कंपोनेंट तो 8 आ गया, बिकॉज 8 जब मैन ऐसे जा रहा है तो उसका नेगेटिव कंपोनेंट इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो जे कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? सेकंड कंडीशन, नाउ इज मूविंग फास्टर, तो अम्ब्रेला को और आगे लाना पड़ेगा इधर। तो क्या बोल रहा है? अम्ब्रेला जो है 30 डिग्री एंगल, ये वर्टिकल से 30 बना रहा है ये, तो इधर भी 30, इधर अपोजिट एंगल हो जाएंगे। यहाँ हमें इधर से एंगल ले रहे हैं उसको, ये 30 है तो ये भी 30, तो ये जो है दिस एंड दिस, इनका रेशो नाउ 10 से, अभी 12, अभी वो 12 से मूव कर रहा है, तो 8 की जगह 12 आ गया यहाँ। तो आई का जो कंपोनेंट है ये a माइनस 12 ये वाला रहेगा, और जे कंपोनेंट d है। एंगल में हम माइनस हटा देते हैं, अभी जब एंगल डील कर रहे हैं ना तो हम उसका लेंथ लेते हैं बस। a माइनस 12 है ये वाला आई कंपोनेंट, और ये b कितना डिग्री? 30 डिग्री, तो 1/√3। तो a की वैल्यू 8 हमने ऊपर से निकाली पुट कर दी, तो b 4√3 आ गया। तो v है, अभी a एंड b की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो रेन की वेलोसिटी इतनी आ गई। इसका मॉड निकालना है, मॉड निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो, ये इतना आएगा 112 which is 16 into 7, 4√7 km/h। ये थोड़ा सा तुम्हें लॉजिक लगाने पड़ेंगे, है ना।